Good morning, dear children. Waving hand, a very warm welcome to all of you to today's session. Before we dive into our lesson, I want to share something truly wonderful with you. Here at heisenbergcloud.com, we are fully dedicated to bringing high-quality, research-driven, and exciting educational content to children just like you, all over the world. To make sure you get the absolute best, our presentations are crafted by a fantastic team of experts across science, engineering, medicine, law, and technology. And guess what, kids? This project is supported by me. I am Rajkumar Vishwakarma. I am Chief Information Commissioner and the former DGP of Uttar Pradesh, and I hold a PhD in AI from the prestigious IIT Delhi. Today, we are going to start a fascinating, bright, and sparkly new chapter called Combustion and Flame. For Class 8 children, it takes huge amount of effort to do a presentation on topic of this nature. Presentation has been prepared by our own neural fuzzy engine and machine learning algorithm. Our research team includes Ms. Aditi Singh, lecturer, Mrs. Vijay Laxmi, lecturer at the Heisenberg International School, Dr. Malika Chowdhury, who has done MBBS and has advanced degree from University of Greifswald, Germany. She is an accomplished dermatologist and is practicing doctor at Gunjan Clinic, Sector 31, Noida. Dr. Varsha Sharma has been Professor of Law and Director of Law Institute, Ishan Raj is electronics engineer and has done his master's in supply chain professional from the University of Texas at Dallas. He is working as consultant at Dallas, USA. Abhilash Sharma is mechanical engineer and is working as business consultant in Noida. Together, they bring expertise from medicine, law, engineering, technology, and business to support our educational and research initiatives. दहन की शर्तें। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आग जलने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं? वे हैं ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। अगर हम इनमें से एक भी चीज को हटा दें, तो आग तुरंत बुझ जाएगी। आग बुझाना। अच्छा बच्चों, अगर कभी आग बुझानी हो, तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला है कूलिंग, यानी पानी डालकर उसे ठंडा कर देना। दूसरा है स्मॉदरिंग, यानी किसी गीले कपड़े या कंबल से ढककर उसका दम घोट देना। और तीसरा है एयर कट ऑफ, यानी हवा की ऑक्सीजन को वहां पहुंचने से रोक देना। मोमबत्ती का काम। कभी सोचा है बच्चों की मोमबत्ती कैसे जलती है? आग की गर्मी से पहले उसके पास का मोम पिघलता है, फिर धागा यानी उसकी विक उस पिघले हुए मोम को ऊपर सोखती है और फिर वही मोम वाष्प यानी वैपोर बनकर सुंदर लॉक के साथ जलने लगता है। सुरक्षा और सबसे जरूरी बात बच्चों, आग से कभी भी भूलकर न खेलें और अगर कभी कोई आपातकाल यानी इमरजेंसी हो तो बिल्कुल घबराएं नहीं, शांत रहकर तुरंत अपने से बड़ों की मदद लें। The fire triangle. Hey kids, did you know that for a fire to burn, it absolutely needs 3 essential things? They are fuel, oxygen and heat. If you remove even one of these things, the fire goes out instantly, extinguishing fire. So, how do we put out a fire, children? There are 3 smart ways. First is cooling, which means lowering the temperature with water. Second is smothering, like blanketing it with a wet cloth to choke it. And third is air cut off, which completely blocks the oxygen. How candles burn. Have you ever watched a candle closely? The heat first melts the solid wax, then the wick absorbs this liquid and finally, the wax turns into vapor to keep that beautiful flame going. Safety rule. Remember, my dear children, never ever play with fire. And if there is ever an emergency, just stay calm and call an adult for help immediately. नमस्कार बच्चों, आज हम दहन कॉम्बस्शन के बारे में सीखेंगे। जब लकड़ी, कोयला या पेट्रोल जैसी वस्तुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हैं, तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से जल जाते हैं, उन्हें दहनशील पदार्थ कंबस्टिबल मैटीरियल्स कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज और पेट्रोल। जो पदार्थ आसानी से नहीं जलते, उन्हें अदहनशील पदार्थ नॉन कंबस्टिबल मैटीरियल्स कहते हैं, जैसे लोहा और कांच। दहन होने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन दहन की सहायक सपोर्टर ऑफ कॉम्बस्शन होती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। नमस्कार बालकाः, अद्य वयं दहनं कॉम्बस्शन इति विषयम् अध्ययनं करिष्यामः। यदा कष्टं कोयलम् अथवा पेट्रोलम् ऑक्सीजन वायोः उपस्थितो दह्यते,
तदा उष्मा तथा प्रकाशः उत्पद्यते। एषा प्रक्रिया दहनम् इति कथ्यते। ये पदार्थाः शीघ्रं ज्वलन्ति ते दाह्यपदार्थाः कम्बस्टिबल मैटीरियल्स सन्ति, यथा काष्ठं, कागदं, पेट्रोलं च। ये पदार्थाः न सहजतया ज्वलन्ति ते अदाह्यपदार्थाः नॉन कम्बस्टिबल मैटीरियल्स सन्ति, यथा लौहं तथा काचम्। दहनस्य कृते ऑक्सीजन आवश्यकः अस्ति। ऑक्सीजन दहनस्य सहायकः इति कथ्यते। दहनम् ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अस्ति, यतः तस्मात् ऊष्मा तथा प्रकाशः निष्पद्यते। Hello students. Today we will learn about combustion. When substances such as wood, coal, or petrol burn in the presence of oxygen, they produce heat and light. This process is called combustion. Materials that catch fire easily are known as combustible materials, such as wood, paper, and petrol. Materials that do not burn easily are called non-combustible materials, such as iron and glass. Oxygen is essential for combustion and is called the supporter of combustion. Combustion is an exothermic reaction because it releases energy in the form of heat and light. दहन कम्बस्टन का प्रयोग। प्यारे बच्चों, आज हम एक मजेदार प्रयोग से समझेंगे कि चीजें कैसे जलती हैं। अगर हम चिमटे टोंग्स से पकड़कर मैग्नीशियम रिबन, चारकोल या माचिस की तीली को स्पिरिट लैंप पर गर्म करेंगे तो वे सब जलने लगेंगे और उनसे गर्मी और लो फ्लेम निकलेगी। इसी जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। हवा है जरूरी। बच्चों, इस चित्र को देखो। जब मोमबत्ती खुली हवा में होती है तो आराम से जलती है, लेकिन जैसे ही हम उस पर कांच का गिलास उल्टा रख लेते हैं वह थोड़ी देर में बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जलने के लिए हवा, ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। जलने वाले और न जलने वाले पदार्थ कम्बस्टिबल दाह्य जो आसानी से आग पकड़ लें, जैसे लकड़ी, कागज और पेट्रोल। नॉन कम्बस्टिबल दाह्य जो आसानी से नहीं जलते, जैसे लोहा और कांच। काम की बात, दहन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जो हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और इससे ऊष्मा, हीट और प्रकाश मिलता है। याद रखना बच्चों, आग जितनी उपयोगी है, अनियंत्रित होने पर उतनी ही खतरनाक भी। संस्कृत में दहनस्य प्रयोग प्रिय बालकाः अद्य वयं प्रयोगद्वारा ज्ञास्यामः यत् दहनं कथं भवति। यदा वयं मैग्नीशियम पट्टिका, अंगारं चाकोल च षण्ढशेन टोंग्स धृत्वा ज्वाल्यामः तदा ते दहन्ति, ऊष्माणं च जयन्ति। वायुः आवश्यकः। पश्यन्तु शिशवः, यदा दीपवर्ती कैंडल मुक्ते वायुः भवति तदा सा प्रज्वलति, परन्तु यदा वयं तस्याः उपरि चषकं ग्लास कुर्मः सा शाम्यति। अतः दहन प्रक्रियायै वायुः ऑक्सीजन अतीव आवश्यकः अस्ति। दाह्य अदाह्य पदार्थाः। दाह्य पदार्थाः ये सुगमतया दहन्ति, यथा काष्ठं, पत्रं, पेट्रोलं च। अदाह्य पदार्थाः ये न दहन्ति, यथा लोहं, काचः च। मुख्य बिंदु, दहनम् एका रासायनिक प्रक्रिया अस्ति यत्र प्रकाशः ऊष्मा च प्राप्यते। अग्निः उपयोगिनी अस्ति, परन्तु अनियंत्रिते सति हानिकारका अपि भवति। Let's see how things burn. Hello kids. Today we are looking at an experiment to understand combustion. If we hold a magnesium ribbon, charcoal, or a matchstick head with a pair of tongs over a lamp, they catch fire and release heat and light. This process of burning is called combustion. Air is a must. Look at the two candles in image. The first candle burns happily in the open air, but what happens to the second one when we cover it with a glass? It stops burning. This proves that air, oxygen, is absolutely necessary for anything to burn. Two types of substances, combustible, things that catch fire easily, like wood, paper, and petrol. Non-combustible, things that do not burn easily, like iron and glass. Important lesson, combustion is a chemical reaction that releases energy. Fire is super useful, but uncontrolled fire is dangerous, so we must always use it safely and responsibly. दहन कम्बस्टन क्या है बच्चों? प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है और हमें गर्मी, हीट और रोशनी, लाइट देती है, तो उसे हम विज्ञान में दहन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। 1. मंद दहन, स्लो कम्बस्टन। बच्चों, ये बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है। जैसे हम जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, हमारा खाना जो पेट में पचता है, या लोहे के गेट में जंग लगना, इसमें हमें कोई आग की लौ नहीं दिखती। 2. तीव्र दहन, रैपिड कम्बस्टन। ये बहुत तेज होता है। जैसे ही मम्मा रसोई में गैस LPG चलाते हैं या हम माचिस की तीली जलाते हैं तो तुरंत ढेर सारी रोशनी और गर्मी मिलती है। 3. स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन। ये तो जादू जैसा है। इसमें किसी चीज को जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप हवा में आते ही जल उठती है। जैसे सोडियम नाम का पदार्थ हवा में रखते ही अचानक जल जाता है। 4. विस्फोट, एक्सप्लोजन। इसे तो आप सब जानते हैं।
जब एक बंद जगह में कोई चीज बहुत कम समय में जोरदार आवाज, तेज रोशनी और गर्मी के साथ फटती है, जैसे दिवाली के पटाखे या बम। दो, संस्कृत में बच्चों के लिए प्रिय बालकाः दहनं किम प्रिय बालकाः यदा कश्चित् पदार्थ वायुना सह मिलित्वा ऊष्माणं प्रकाशं च जयति तत् दहनमुच्यते। एतत् चतुर्विधं भवति। एक मंद दहनं प्रिय शिशवः एतत् अतीव मंदगत्या भवति, यथा अस्माकं श्वसनक्रिया रेस्पिरेशन् अथवा भोजनस्य पचनम् अत्र अग्निः न दृश्यते। दो, तीव्र दहनं यत् शीघ्रमेव प्रज्वलति, यथा अग्निपेट्टिकायाः शलाकायाः मैचस्टिक दहनं वा पाकगृहे एलपीजी वायोः दहनं। तीन, स्वतः दहनम् एतत् अतीव कौतुकपूर्णम् अत्र विना अग्निपेट्टिका पदार्थः स्वयमेव वायोः सम्पर्के प्रज्वलति, यथा सोडियम धातुः चर्विस्फोटः। एतत् तु भवन्तः जानन्ति एव, यदा अल्पस्मै एव तीव्रध्वनिना प्रकाशेन च सह पदार्थः विस्फोटति, यथा दीपावल्याम् अग्निबाणानां फायरक्रैकर्स दहनम्। What is combustion, children? Hello my dear children. Simply put, when a substance reacts with oxygen to give us heat and light, we call it combustion. It has four main types. 1. Slow combustion. Kids, this happens very, very slowly and at a low temperature. You won't even see a flame. Great examples are our own breathing, respiration, the digestion of food in our tummies, or the rusting of iron gates too. Rapid combustion. This one is super fast. Think of when your mum lights the LPG stove or when you strike a matchstick, it instantly catches fire and gives off lots of heat and light. 3. Spontaneous combustion. This is like a science magic trick, children. A material suddenly bursts into flames all by itself without using any matchstick, just like how the element sodium catches fire the moment it touches open air. 4. Explosion. I'm sure you all know this one. This happens when something burns completely in a split second inside a closed space, creating a huge sound, bright light, and heat, just like your favorite festive firecrackers. स्वतः दहन स्पॉन्टेनियस। दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें जलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप पीले फास्फोरस को खुली हवा में रखेंगे, वह अपनी आप आग पकड़ लेगा। इसे ही हम स्वतः दहन कहते हैं। मंद दहन स्लो कॉम्बस्टन। लोहे में जंग लगना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये इतनी धीमी गति से जलने ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है कि इसमें न तो कोई रोशनी दिखती है, न आवाज आती है, और इसकी गर्मी को हम महसूस भी नहीं कर सकते। अपूर्ण दहन के नुकसान। जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलता तो हवा में कालिक सूट उड़ती है, जिससे प्रदूषण होता है। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी बेहद जहरीली गैसें बनती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। 2. संस्कृत स्वतः दहनम् भूमित्राणि केचन पदार्थाः प्रज्वालनाय अग्निपेटिका न अपेक्षन्ते, यथा पीत फास्फोरसाय वायोः सम्पर्के आगच्छति एव स्वयमेव प्रज्वलति, एतदेव स्वतः दहनमुच्यते। मंद दहनं लोहे जंगलग्नं रस्टिंग अस्य उत्तमम् उदाहरणम्। एषा एतादृशी मंदा प्रक्रिया अस्ति यत्र न कोऽपि प्रकाशः दृश्यते, न ध्वनिः भवति, न च ऊष्मा अनुभूयते। अपूर्णदहनस्य यदा ईंधनं पूर्णरूपेण न दहति तदा कज्जलं सूट वायुमण्डलं प्रदूषयति। अत्र कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सदृशाः अति विशालः वायवः अपि उत्पद्यन्ते। Spontaneous combustion. Hello everyone. Did you know some substances don't even need a matchstick to catch fire? If you just leave yellow phosphorus out in the air, it bursts into flames all by itself. That's spontaneous combustion for you. Slow combustion. A perfect everyday example of this is the rusting of iron. It's an oxidation process that happens so incredibly slowly that it produces absolutely no light or sound, and you can't even feel the heat being generated. Incomplete combustion. When fuel doesn't burn completely, it's bad news. It releases unburnt carbon into the air as dirty soot, and creates highly toxic gases like carbon monoxide, CO, and sulfur dioxide, SO2, which are very dangerous to breathe. महत्व। आग को समय पर रोकना जरूरी है, वरना ये जानलेवा हो सकती है। सुरक्षा के लिए घरों, स्कूलों और दफ्तरों में हमेशा अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। बुझाने के 3 तरीके। दहन की 3 शर्तों को हटाकर आग बुझाई जाती है। जलने वाले पदार्थ कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना, हवा ऑक्सीजन की सप्लाई काटना, तापमान को उसके ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लाना, ठंडा करना। संस्कृत महत्वम् अग्नेः समयोचितं नियन्त्रणम् आवश्यकम्, अन्यथा एषा प्राणहानिका भवति। सुरक्षायै गृहे विद्यालये च सर्वदा अग्निशामकयन्त्रं भवेत्। शमनस्य 3 उपायाः। दहनस्य 3 अवस्थाः निवार्य अग्निं शामयति। दाह्यपदार्थं पृथक्करणं, वायोः ऑक्सीजन
प्रवाहनरुद्धमकरणम, तापमानज्वलन तापमानात्यूनन आयनम, शीतलीकरणम। Importance. Fire must be controlled on time to prevent fatalities. Fire extinguishers should always be kept ready at home, school, and office. 3 ways to extinguish. Fire is put out by removing the 3 conditions necessary for burning, removing the combustible substance, cutting off the air, oxygen, supply, cooling the substance below its ignition temperature. परिचय। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा उपकरण है जो जलती हुई सामग्री को ठंडा करके और हवा, ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यह सबसे सरल प्रकार है। नॉब दबाने पर सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाते हैं, जो आग को बुझा देती है। ध्यान दें, ये तेल की आग पर काम नहीं करता है। अन्य प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तेल, पेट्रोल और बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे प्रभावी है। फोम झाग प्रकार ठोस और तरल पदार्थों की आग के लिए उपयोगी। ड्राई पाउडर सूखा पाउडर तरल पदार्थों और बिजली के तारों की आग के लिए सुरक्षित। संस्कृत परिचय। अग्निशामक यंत्रं फायर एक्सटिंग्विशर एकं साधनं अस्ति यत् दाहक पदार्थं शीतलं कृत्वा वायोः ऑक्सीजन प्रवाहं रुद्ध्वा अग्निशमयति। सोडा एसिड यन्त्रम् एतत् सरलतमं यन्त्रम् अस्ति। यदा अस्य कीलकं नॉब निपीड्यते तदा सल्फ्यूरिक अम्लं सोडियम बाइकार्बोनेटेन सह रासायनिक क्रिया कृत्वा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुं जयति येन अग्निशमयति। विशेषतः एतत् तैलजनिताग्नि अप्रभावी भवति। अनेक प्रकाराः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एतत् तैल पेट्रोल विद्युत जनिताग्नि शमितुं सर्वोत्तमम् अस्ति। फ्लेम फोम यन्त्रं ठोस तरलपदार्थानां अग्निशमनाय प्रयुज्यते। शुष्कचूर्ण ड्राई पाउडर यन्त्रं रासायनिक तरलपदार्थेषु विद्युत्तन्तुषु इलेक्ट्रिकल वायर्स च प्रभावी भवति। Introduction. A fire extinguisher is a device used to put out fires by cooling the burning material and cutting off the air supply. Soda acid extinguisher, the simplest type. When the knob is pressed, concentrated sulfuric acid reacts with sodium bicarbonate to release carbon dioxide, 2NaCO3 plus H2SO4 Na2SO4 plus 2H2O plus 2CO2, which cuts off oxygen. Note, it is not effective for oil fires. Other types, carbon dioxide, CO2, best for electrical and flammable liquid oil petrol fires. Foam type, used for solid or liquid fires. Dry powder, effective for liquids and electrical wiring. ज्वाला फ्लेम। हर जलने वाली चीज ज्वाला नहीं बनाती, केवल वही पदार्थ ज्वाला बनाते हैं जो गर्म होकर वाष्प वेपर में बदलते हैं, जैसे मोम। इतिहास। 1860 से 61 में माइकल फैराडे ने मोमबत्ती पर 6 प्रसिद्ध लेक्चर्स दिए थे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड का हर नियम मोमबत्ती के जलने में शामिल है। कार्यप्रणाली। माचिस की गर्मी से मोम पिघलकर वाष्प बनता है और हवा के साथ मिलकर स्पिंडल तकली के आकार की लौ बनाता है। लौ के 4 क्षेत्र जोन्स। नॉन ल्यूमिनस बाहरी सबसे गर्म भाग जहां पूर्ण दहन होता है। ल्यूमिनस पीला अधूरा दहन जिससे बिना जले कार्बन कण और कालिक सूट बनती है। डार्क आंतरिक दागे के पास का क्षेत्र जहां दहन नहीं होता। ब्लू नीचे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चलती है। संस्कृत ज्वाला दाग प्रतीक है पदार्थ ज्वाला न जयति केवलन्ते एव वाष्परूपाः पदार्थाः ज्वाला उत्पाद्यन्ते यथा सिक्थकम वैक्स। इतिहास है। 1860 से 61 वर्षे माइकल फैराडे महोदय अस्याः रसायनशास्त्रे 6 व्याख्यानानि दत्तवान्। अस्य मते ब्रह्माण्डस्य सविनियमाः दृश्यन्ते। प्रक्रिया। उष्मनामोमः द्रवीभूतः भूत्वा वाष्परूपं धरति वायुना सह मिलित्वा चतुर्कुलस्पिण्डलाकारा ज्वाला जयति। 4 भागाः सोन्स। नॉन ल्यूमिनस बाह्य पूर्ण दहनस्य क्षेत्रम् अत्यधिकं उष्णं। ल्यूमिनस पीतः अपूर्ण दहनस्य भागः यत्र कज्जलं सूट उत्पद्यते। डार्क अन्तः वर्तेः समीपस्थः भागः यत्र दहनं न भवति। ब्लू नीलः अधस्तनः भागः यत्र कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रज्वलति। Flame. Not everything that burns produces a flame. Only substances that vaporize when heated create a flame, like wax. History. In 1860 to 1861, Michael Faraday gave 6 famous lectures on candles, stating that every law of the universe plays a role when a candle burns. Mechanism. Heat melts the wax into vapor, which mixes with air to create a spindle-shaped flame. 4 flame zones. Non-luminous, outer, zone of complete combustion, hottest part. Luminous yellow, in complete combustion, produces soot particles. Dark, inner, area around the wick, no combustion happens. Blue, base,
where carbon monoxide gas burns. एक नॉन ल्यूमिनस अदीप्त क्षेत्र, ये लौ का सबसे बाहरी हिस्सा है जो पूरी लौ को घेरता है। यहाँ मोम के वाष्प को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है जिससे पूर्ण दहन कंप्लीट कॉम्बस्टन होता है। ये लौ का सबसे गर्म भाग है। दो ल्यूमिनस अदीप्त क्षेत्र, ये लौ का बीच वाला पीला या हल्का नारंगी हिस्सा है जो रोशनी देता है। यहाँ ईंधन का पूरा दहन नहीं हो पाता इनकम्प्लीट कॉम्बस्टन, जिससे बिना जले कार्बन कण चमकते हैं और प्रकाश पैदा करते हैं। तीन डार्क अंधेरा क्षेत्र, ये दागेवे के ठीक चारों ओर का सबसे आंतरिक हिस्सा है। यहाँ हवा से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, इसलिए इस क्षेत्र में कोई दहन कॉम्बस्टन नहीं होता। चार ब्लूज नीला क्षेत्र, ये लौ के बिल्कुल निचले हिस्से यानी दागे के आधार पर होता है। अपूर्ण दहन के कारण यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जिसके जलने से इसका रंग नीला दिखाई देता है। संस्कृत एक नॉन ल्यूमिनस अदीप्त भाग एषज्ज्वालायाः बाह्यतमः भाग्य हस्ति अत्र मोम वाष्पाय प्रचुरा ऑक्सीजन वायु मिलति येन पूर्ण दहनं भवति एषज्ज्वालायाः सर्वाधिक उष्णः भाग्य हस्ति। दो ल्यूमिनस अदीप्त भाग एषज्ज्वालायाः मध्यः पीतवर्णः भाग्य हस्ति यः प्रकाशं ददाति अत्र ईंधनस्य अपूर्ण दहनं भवति येन प्रज्वलिताः कज्जलकणाः प्रकाशं चयन्ति। तीन डार्क अंधकार भाग एषः वर्तेः विक्समीपस्थः हन्तः भाग्यः अस्ति अत्र वायोः ऑक्सीजन अभावत्वात् किमपि दहनं न भवति। चार ब्लू जोन नील भाग एषः भागः ज्वालायाः धसने मूले भवति अपूर्ण दहनेन अत्र कार्बन मोनोऑक्साइड वायुः उत्पद्यते येन अस्य वर्णः नीलः दृश्यते। For English speakers 1. Non-luminous zone, the outermost layer that surrounds the entire flame. Since it gets plenty of oxygen from the air, complete combustion takes place here, making it the hottest part of the candle flame too. Luminous zone, the middle yellow or light orange visible region that emits light. It is caused by the incomplete combustion of the wax, which produces glowing, unburnt carbon soot particles. 3. Dark zone, the innermost area right around the burning wick. The wax vapors here do not get any oxygen at all from the air, meaning absolutely no combustion takes place in this zone. 4. Blue zone, found right at the bottom base of the burning wick. In this area, carbon monoxide is produced due to incomplete combustion, which burns to give a distinct blue color. ईंधन फ्यूल क्या है? दोस्तों, ईंधन ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी का मुख्य स्रोत है। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो हमें वह ऊष्मा मिलती है। दहन की प्रक्रिया जलना असल में तीव्र ऑक्सीकरण रैपिड ऑक्सीडेशन की एक प्रक्रिया है। हमारे आसपास के अधिकांश ईंधन मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। उत्पाद जब भी कोई पदार्थ चलता है तो वह मुख्य रूप से ऊष्मा हीट और प्रकाश लाइट पैदा करता है। एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर जलने वाली चीज कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम ईंधन नहीं कह सकते। संस्कृत स्पीकर ईंधनम फूल भूमित्राणि ईंधनम ऊष्मा ऊर्जायाः मुख्य स्रोतः अस्ति तस्याः प्रापयवयन् ईंधनं प्रज्वाल्यामः दहन प्रक्रिया प्रज्वलनं वास्तवतः तीव्र ऑक्सीकरणस्य रैपिड ऑक्सीडेशन एका प्रक्रिया अस्ति। प्रायः सर्वे ईंधनपदार्थाः कर्बनेन कार्बन हाइड्रोजन वायुना च निर्मिताः भवन्ति। उत्पादं यदा कश्चित् पदार्थः दहति तदा सः ऊष्माणं प्रकाशं च जयति। विशेष नियमः सर्वे अपि दाह्यपदार्थाः कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ईंधनानि इति वक्तुं न शक्यन्ते। What is fuel? Hello everyone. Fuel is basically a source of heat energy. To harness or obtain that energy, we need to burn the fuel. The process of burning, scientifically, burning is a process of rapid oxidation. Most of these combustible substances are primarily made up of carbon and hydrogen. Output: whenever a substance burns, it releases both heat and light. Key takeaway: a very important point to remember is that all combustible substances cannot be classified as fuels. ईंधन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। दोस्तों, ईंधनों को दो मुख्य तरीकों से बांटा जा सकता है। अवस्था के आधार पर ठोस, तरल, गैस और उनकी उपलब्धता या उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स। ग्रामीण इलाकों में आज भी घरेलू ऊर्जा का लगभग 80% हिस्सा लकड़ी और उपलों का केक्स जैसे ठोस ईंधन से आता है। कैलोरी मान कैलोरिफिक वैल्यू: एक ग्राम ईंधन के पूरी तरह जलने पर जितनी ऊष्मा ऊर्जा मिलती है उसे उसका कैलोरी मान कहते हैं। इसे केजी या केजी में मापा जाता है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे ज्यादा 150 केजी है, जबकि उपलों का सबसे कम 6 से 8 केजी है। धुआं रहित चूल्हा बनाम पारंपरिक चूल्हा, इसमें ईंधन का अधूरा दहन इनकम्प्लीट कॉम्बस्टन होता है। दक्षता सिर्फ 3 से 10% होती है
और निकलने वाला धुआं सांस की बीमारियां पैदा करता है। धुआं रहित चूल्हा स्मोकलेस चूल्हा, इसमें पूर्ण दहन होता है, दक्षता बेहतर होती है और एक लंबी चिमनी की मदद से धुआं सीधा बाहर निकल जाता है जिससे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचता। संस्कृत स्पीकर ईंधन से वर्गीकरण भूमित्राणि ईंधनानि द्विविधेन वर्गीकृत्य शक्यन्ते भौतिकावस्थानुसारं ठोस तरल गैस रूपेण तथा उत्पत्त्यनुसारं यथा जीवाश्मीन्धनम् ग्रामीण क्षेत्रेषु अद्यापि 80% गार्हस्थ्य ऊर्जा काष्ठः परिश्रयः काउडाङ्केक्स च प्राप्यते। कैलोरी मानं कैलोरिफिक वैल्यू एकग्रामे तस्य ईंधनस्य पूर्णदहनेन या उष्मा ऊर्जा उत्पद्यते तत् तस्य कैलोरी मानं कथ्यते। अस्य kg भवति। कोष्ठके पश्यन्तु हाइड्रोजन वायोः मूल्यं सर्वाधिकं 150 kg तथा कणिशस्य न्यूनतमं 6 से 8 kg अस्ति। धूम्ररहित चुल्ली बनाम पारंपरिक चुल्ली अत्र ईंधनस्य अपूर्णदहनं भवति। क्षमता केवल 3 से 10% भवति। धूमश्वसन रोगान् जनयति। धूम्ररहित चुल्ली स्मोकलेस चूल्हा अत्र पूर्णदहनं भवति। कार्यक्षमता नवीना उत्तमा भवति। दीर्घधूमार्गस्य चिमनी साहाय्येन धूमः बहिः गच्छति येन स्वास्थ्य रक्षा भवति। English classification of fuels. Hello everyone. Fuels can be classified in two ways, based on their physical state, solid, liquid, gas, and their occurrence, like fossil fuels. Interestingly, solid fuels like wood and dung cakes still contribute about 80% of domestic fuel requirements in rural areas. Calorific value. This is the amount of heat energy produced when 1 gram of fuel is completely burnt, measured in kg or kg. Looking at the table, hydrogen has the highest calorific value at 150 kg, while cow dung cakes have the lowest at just 6-8 kg. Smokeless chulha versus traditional chulha. Traditional chulha, it suffers from incomplete combustion, has a very low efficiency of only 3-10%, and lacks a chimney, leading to harmful smoke and respiratory diseases. Smokeless chulha, it ensures complete combustion and much better efficiency. It features a tall chimney that safely carries away soot and smoke, protecting the cook's health. ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ईंधन आग पकड़ता है। ये कम होना चाहिए पर कमरे के तापमान से ऊपर ताकि दुर्घटना न हो। एलपीजी फैक्ट, घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम एलपीजी होती है। यह गंधहीन होती है, इसलिए लीकेज पहचानने के लिए इसमें तेज गंध वाला इथाइल मरकैप्टान मिलाया जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा एसिड रेन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश में मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ये जहरीली गैस खून में ऑक्सीजन की क्षमता कम करती है। ग्लोबल वार्मिंग, अधिक CO2 उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है। SPM और लेड हवा के बारीक कण SPM अस्थमा देते हैं और लेड से कैंसर का खतरा होता है। 2. संस्कृत स्पीकर ज्वलन तापमानम यस्मिन् न्यूनतम तापमाने ईंधनं प्रज्वलति एतत् न्यूनं भवेत् परंतु प्रकोष्ठ तापमानात् अधिकं स्यात्। एलपीजी विशेषः सिलिंडर मध्ये 14.2 किलोग्राम एलपीजी भवति। एषः गन्धहीनः अस्ति, अतः लीकेज ज्ञानाय अत्र इथाइल मरकैप्टान मिश्रणं क्रियते। पर्यावरणे दुष्प्रभावः, अम्लवृष्टिः एसिड रेन, सल्फर नाइट्रोजनयोः ऑक्साइडाः वर्षाजले मिलित्वा अम्लवृष्टिः जनयन्ति। कार्बन मोनोऑक्साइड को एषः विषालुवायुः रक्ते ऑक्सीजन क्षमतां करोति। ग्लोबल वार्मिंग, अधिक CO2 वायुः पृथिव्याः तापमानं वर्धयति। SPM लेड धूमकज्जलकणाः SPM श्वासकष्टं जनयन्ति। लेड धातु चक्कररोगं कैंसर जनयति। Ignition temperature, the lowest temperature at which a fuel catches fire. It should be low, but safely above room temperature. LPG fact, a domestic cylinder contains 14.2 kilograms of LPG. Being naturally odorless, strong-smelling ethyl mercaptan is added to detect leaks. Environmental impacts, acid rain, sulfur and nitrogen oxides dissolve in rain, forming harmful acids. Carbon monoxide, CO, a toxic gas that drastically reduces oxygen levels in the blood. Global warming, excess CO2 traps heat, leading to global temperature rise. SPM and lead, suspended matter, SPM, causes asthma, and lead compounds from vehicles can cause cancer. Source of light, chimney fires, residue, highly flammable, 2000 F, ! Chimney fires, chimney, 2000 F. Why fire has no shadow? Hello everyone. Have you ever noticed that fire doesn't cast a shadow? This is simply because fire itself is a source of light, rather than an object that blocks it.
Chimney fires. A fast-burning chimney fire consumes the residue built up inside it, which is highly flammable. Interestingly, the temperature of these chimney fires can run incredibly hot, reaching as high as 2000 F. Combustion, slow, rapid, spontaneous, explosion, 1, calorific value, fossil fuel CO2, CO, number 2, dry powder, CO2, CO, number 2. English speaker. Combustion and fire extinguishing. Hello everyone. 3 essential conditions must be fulfilled for combustion to take place. Combustion itself has 4 types: slow, rapid, spontaneous, and explosion. To control fires, we use various extinguishers like soda acid and dry powder. Candles and fuels. A candle flame consists of 4 distinct zones: dark, blue, luminous, and non-luminous. Materials that burn to produce heat and light efficiently at a reasonable cost are called fuels. The heat produced by burning 1 gram of fuel is its calorific value. Gaseous fuels versus pollution. Gaseous fuels are considered the best because they are easy to transport, have a high calorific value, a low ignition temperature, and undergo complete combustion. On the other hand, burning fossil fuels releases harmful gases like CO2, CO, and number 2, causing severe pollution. Thank you, children. Please subscribe our channel for lectures from nursery to class 12. We cater the best lectures to poor children free of cost. Our aim is to find out Einstein amongst you. Don't worry. Keep on learning with us. Learn many languages. By listening our lecture, your English and Hindi will also improve. Thank you. Obey your mom and dad. They are the best friend of yours. You will always miss them when they are gone. Bye.